सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रश्न तारे पूछना तो Martin gives you something. મને એવી એક જાણવાની ઈચ્છા એવી થઈ કે ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ દશાવતારમાં એક આપણે માનીએ છીએ એ હું તમને કહીશ. ઓકે શંકરાચાર્ય મહારાજનો વિડીયો તમને કહીશ. એટલે એમના જો આ શૂન્યવાદ ને બધા એમના ઉપરથી કોકે મિસઇન્ટરપ્રિટ એમને કર્યા હતા કે એમનો પોતાનું આવું મંતવ્ય શોધી કાઢીશ. જ્યાં ઓથેન્ટિક કહેવાનો વાત નથી પણ શેખર બીજો હજી થોડા આગળ આવી જાઓ. હરિઓમ બધાને. સ્વિચ આપણે સ્વિચ ઓન આપણે ગુપ્ત શાસ્ત્રમાં 28મા શ્લોકમાં વાંચ્યું ને એમાં ગૌડપાળાચાર્ય થઈ ગયા બરાબર ને. એમને જે નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે બરાબર એમાં એવું કે ઘણા યોગીઓને ભય થાય છે બરાબર. નિર્વિકલ્પમાં ભય કેવી રીતે થતો હશે? સવિકલ્પમાં તો ઠીક છે કે મંત્ર કે જાપ અને 2-3 ક્લાસ તો આપણે એમ જ કર્યા. નિર્વિકલ્પમાં ભય છે. પ્રશ્ન એવો છે એમનો નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં ભય શાંતિ થાય છે. આપણે 2-3 કલાક એની ચર્ચા કરી, એની જ ચર્ચા કરી, માત્ર ને માત્ર એની જ ચર્ચા કરી. નિર્વિકલ્પ એક એવા છોડ્યો તો બધાનો હાજર હતા, કોઈ વાતમાં નહોતા, બધામાં હતા. સારું, બીજું કંઈ પૂછવું હતું? આ જ પૂછવું છે ને? સેમ એમાં લક્ષીને શંકરાચાર્યનો બી પ્રશ્ન જ છે. શંકરાચાર્યજીએ એવું કીધું કે જે આપણે શ્રુતિ અને સ્મૃતિના અનુસરણતામાંથી અને જે સમાધિ લે છે એ લોકોને ભ્રાંતિ થઈ જાય છે બરાબર. એવું નથી કહ્યું. તો શ્રુતિ સ્મૃતિને અનુસરતા નથી, અમને ભ્રાંતિ થાય છે એવું નથી કહ્યું ભાષ્યકાર ભગવાને. લખેલું છે અને ત્રીજો પ્રશ્ન એવો છે કે જે વાર્તિકાર થઈ ગયા એમને બી એવું જ કર્યું છે કે જે યોગી હોય સંકલ્પ સમાધિમાં જે જતા હોય બરાબર છે એ લોકો જો અનુમાનથી જતા હોય, અનુમાન કરીને જતા હોય તો એ લોકોને પહોંચી વળી શકતા નથી. દાદામાં એવું કીધું છે, એમાં બી એવું જ કીધું છે. સંકલ્પમાં નથી પહોંચી વળતા, એ લોકો નથી જઈ શકતા. પેલામાં ભ્રાંતિ થાય છે અને પેલામાં વ્યાગ દોષ થાય છે. વ્યાગ દોષ એટલે કે જે સમાધિ લગાવે તો આકાશમાં ગ્રહો જોઈ શકતા હોય એવું લખેલું છે. એટલે જે એ ખોટું છે એ પ્રમાણે આકાશમાં ગ્રહો દેખાય? હા એવું લખ્યું છે. હા એટલે બ્રહ્મમાં નહીં જોઈ શકે. બ્રહ્મમાં આવું કંઈ આવતું નથી. આકાશમાં ગ્રહો દેખાય એવું ક્યાં લખ્યું છે? એવું છે, એવું લખેલું છે. પંચદશીમાં લખ્યું છે. હા પંચદશીમાં આકાશમાં ગ્રહો દેખાય એવું લખ્યું છે. હા એવું લખેલું છે. બતાવું તમને.
વર્તિકા શંકરાચાર્ય અને ગૌડપાદાચાર્ય તમે કઈ પ્રકાશનની કયો પ્રકાશન આ જ પ્રકાશન આપણે આ બધું આપણે શેમાં છે તો ચાલ શોધી કાઢજે તમે શોધો ત્યાં લગી બીજો પ્રશ્ન કરી દઈએ હા આપણે બરાબર આ લોકોને પૂછવું હતું ને Yes. माताजी मेरी एक जिज्ञासा है कि ईश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण आनंद से किया है तो फिर जीव दुख क्यों पाता है? ગૌડપાદાચાર્ય અત્યંત ભય થાય છે તારા દેખાય આકાશને એવું ક્યાં લખ્યું છે એ બતાવો બાપરે આ ભગવાન શંકરાચાર્યનું છે જો તારા દેખાય છે એ ક્યાં છે આ સદરૂપ આત્મા છે ને એ ભ્રાંતિ પામેલા હોય છે બરાબર કઈ આ શ્લોકોની કાલ ફરી ચર્ચા કરી દઈશ આ શ્લોકોની કાલ ફરી ચર્ચા કરી દઈશ અને આ શૂન્યવાદીમાં છે ને જો વ્યાગદોષ લાગે છે લખેલું છે અને વ્યાકરણ તો દોષે પણ સમજાવ્યું હતું બરાબર હા. કાલે હું ફરી ચર્ચા કરીશ બરાબર આ શ્લોકોની અને સૃષ્ટિપુર અહીંયા એવું લખ્યું છે ને પછી આકાશીનું અસ્તિત્વ કેવી રીતે એનું કંઈ લખેલું છે કશા વાંધાને વ્યવસ્થિત શોધી રાખજો સોરી ચર્ચા કરીશું હા સદરૂપ જે સમાધિ હોય એ તો આપણે શબ્દ વળું હોય ને જ્યાં શબ્દ પહોંચી શકે ને કે ના પહોંચી શકે ક્યાં શબ્દ પહોંચે સંકલ્પ સમાધિમાં સમાધિમાં શબ્દ પહોંચે કે નહીં આપણે કાંઈક મંત્ર જાપ કરતા હોઈએ આપણે અથવા નામ સ્મરણ કરતા હોઈએ અને ધીરે ધીરે આપણે ધ્યાન લગાવતા હોઈએ એટલે આપણે નિર્વિકલ્પમાં તો નહીં જવાય પણ સવિકલ્પમાં જઈ શકાય થોડું થોડું બરાબર ધ્યાન થાય તો એટલે આનંદ જેવું પ્રાપ્ત થાય તો પછી આગળ તો પહોંચી નથી શકતા સહસ્ત્રધામ ના જવાય એટલે પણ નામ કામ કરે કે નહીં પાછળ છેલ્લે નામ કામ કરે કે નહીં હા હા કારણ કે નામ શબ્દ બ્રહ્મ છે નામ છે ને શબ્દ બ્રહ્મ છે એક આખો પ્રશ્નોત્તર પણ એના માટે કાઢ્યો આપણે નામથી શું થાય નામ હાઉ ડઝ ધ નેમ હેલ્પ સમાધિમાં નામ શી રીતે મદદ કરે પ્રશ્નોત્તરનું આખો સેશન અને પ્રવચનનું સેશન બરાબર આપણે એની ભરપેટ ચર્ચા કરી બહુ ચર્ચાઓ કરીશું ચર્ચા તો કરી તમે પણ આ ભયનું કંઈ કારણ સમજ પડતું નથી બાકી साथ સમજ एक बारी बात करते हैं चौकस इनका प्रश्न यह है कि भगवान का स्वरूप तो आनंद है तो सर्जन उसने किया भगवान ने वह भी आनंद आउट ऑफ जॉय आनंद से ही किया है तो आनंद से सर्जन करना है तो किया फिर उसका सृष्ट जिसका सर्जन किया उसने जीव का वह दुखी क्यों है यह प्रश्न इस प्रकार का है कि सुवर्ण में से अलंकार बना बराबर सुवर्ण उपादान का उपादान निमित्त कारण सुवर्ण उपादान है उसमें से बंगड़ी बने तो उसमें मिट्टी कहाँ से आ गई बराबर एक प्रकार का प्रश्न है कि सोनानी बंगड़ी बनी सोનું ઉપાદાન છે તો બંગડીમાં વચ્ચે માટી કેમ દેખાય છે એમ નારાयण आनंद है नारायण उपादान है नारायण सर्जन के सर्जन में जीव भी उसका सर्जन है तो दुख क्या है बराबर एवं प्रश्न है रज्जु ने सांप का सर्जन किया तो सर्प में जहर कहाँ से आए
रज्जु ने सर्प का सृजन किया, सर्प में जहर कहाँ से, विष कहाँ से आया? तो सर्जन क्या है? कहाँ दुख है? दुख नाम की कोई चीज नहीं है। अब कल्पना करना है तो कर लो, जब कल्पना करने की मर्जी है कर लो कल्पना कि रज्जु है और सर्प है, सर्प में कितना विष है और इसको विष ने डंक दिया, वो मर गया, यही मर गया। तो दूसरा तो वो घर जाकर मर गया और इतना जहर है सांप के अंदर, वो तो उसने तो सिर्फ देखा और उसने तो सुना और मर गया। कल्पना करने में क्या दरिद्रता रख के करो जितनी कल्पना करनी हो। तो ऐसे कल्पना करनी, ये दुखी है वो दुखी है, कहाँ दुख है? पर ये सब पता होने के बावजूद भी मतलब याद नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, हम भी उसमें उलझ जाते हैं। उससे निकले कैसे, वृत्ति कैसे बने कि उसमें रहे, उस बोध में? वृत्ति के विषय में आपने पूछा था ना, ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बने, यह प्रश्न है। बात तो साची है, हमने बताया नहीं, प्रश्न पूछे नहीं कि ब्रह्माकार वृत्ति કેવી રીતે બને? સાંભળો છો? પણ જોતા નથી, પણ જોતા નથી. મેં ક્યાં કીધું કે નથી સાંભળતા, જોતા કીધું. This is a light session. पूरा दिन पढ़ पढ़ करते सब. ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बने? मेरे सामने घट है तो मेरी वृत्ति बनेगी घटाकार वृत्ति, ठीक है? और कंजूस मतलब होता है। और इसको पट कहते हैं, वस्त्र आने वाला। तो इससे बनेगी पुष्पाकार वृत्ति। अब घटाकार वृत्ति है, घट सामने होने से पुष्प जब सामने आया, मन अगर घटाकार वृत्ति को छोड़े नहीं तो क्या पुष्पाकार वृत्ति बनेगी? बनेगी? इनका संस्कार है वेदांत का, शायद समझाय છે હું શું કહું છું? મનમાં એક વૃત્તિ, આ ઘોડો સામે છે, ઘટાકાર વૃત્તિ છે અને આ પુષ્પ આવે છે. જો મન ઘટાકાર વૃત્તિને ના છોડે તો એ પુષ્પાકાર વૃત્તિ બનાવી શકશે ખરું કે નહીં? नहीं? ओके. तो मन को बनना है ब्रह्माकार. ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा विराट, The bigger than the biggest. एक अद्वितीय ब्रह्म इतना बड़ा है कि छोटा भी कुछ नहीं है ना, छोटा भी कुछ नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है, एक अद्वितीय है. उसकी वृत्ति बनानी है. मैं तो जीव हूं, दुखी हूं, पिता हूं, पुत्र हूं, पति हूं, धनवान हूं, सत्तावान हूं, यशोवान हूं. अब जो पिता है, पुत्र है, धनवान है, वह अल्प है कि सबसे बड़ा है? अल्प माने छोटा. वह छोटा जीव है कि महान ब्रह्म है? छोटा जीव है. अब छोटा जीव रहकर बड़ा ब्रह्म बन सकता है कि नहीं बन सकता है?
छोटा जीव रहकर बड़ा ब्रह्मा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बनेगा? छोटा जीव छोटा, छोटा जीव छोटे का नहीं तो बड़ा कैसे बनेगा? तो हमें साधना क्या करनी है? ब्रह्म को पाने की कि जीव को छोड़ने की? अच्छा, कहाँ से पाएंगे? निश्चित कर लो क्या करना है। ब्रह्म बनना है कि जीव को छोड़ना है? छोड़ना। अगर ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्म कहीं बैठा है स्वर्ग में, है ना? अगर ब्रह्म को पाना होगा तो ब्रह्म कहीं वैकुंठ में, साकेत में, कैलाश में कहीं पर बैठा होगा, वहां जाना पड़ेगा, फिर ब्रह्म मिलेगा। तो ब्रह्म बड़ा रहेगा। वहां है और यहाँ नहीं है तो बड़ा हो सकता है? बड़ा माने हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों के अर्थ के व्याप को हम पूरा न्याय नहीं देते हैं। इसकी डायमेंशन क्या है? ब्रह्म शब्द की डायमेंशन, इसका व्याप क्या है? तो ब्रह्म माने बड़ा बड़ा बड़ा, इतना बड़ा कि वहां यहाँ होगा और कैलाश में नहीं होगा, कैलाश में होगा और यहाँ नहीं होगा, तो बड़ा हो सकता है सभी जगह। अच्छा, तो जगह भी होगी। वो तो देश का से परे। सब तो बोलते हैं कि देश काल से परे है, और सब जगह होगा तो जगह होगी कि नहीं होगी? प्रश्न यही है एनीवे कि हमें जीवत्व को छोड़ना नहीं है, तो ब्रह्म बनना है, और वो नहीं हो सकता। प्रयत्न यह करना है कि जीवत्व छूटे। जीवत्व माने अल्पत्व, लघुता, inferiority also is a part of जीवत्व, even superiority is a part of जीवत्व। लघुता क्रांति भी जीव का धर्म है, गुरुता क्रांति भी जीव का ही धर्म है। दोनों ही जीव है। ब्रह्म इतना बड़ा है कि उसको कोई गुरुता की जरूरत है, लघुता की जरूरत नहीं। दोनों भी मेरे ही धर्म है। तो प्रश्न यह होगा कि लघुता को छोड़े कैसे? लघुता माने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन वन वे। लघुता माने मेरा कोई भी वेश, मैं जो हूं जिसका कोई वेश नहीं है, मैं ब्रह्म हूं। मेरा नाम रूप नहीं है, मैं ब्राह्मण भी नहीं, पुरुष भी नहीं, स्त्री भी नहीं, धनवान गरीब भी नहीं, माने अमाने भी नहीं, सुखी दुखी भी नहीं, गुरु शिष्य भी नहीं, कुछ नहीं है। उस मैं को अगर पिता बना दिया तो बहुत छोटा बन गया कि नहीं? बन गया। उस मैं को जिसका नाम रूप नहीं, इसकी कोई मर्यादा सीमा परिच्छिन्नता अनंत है, उस अनंत को अगर मैंने पिता बना दिया, पति बना दिया, पुत्र बना दिया, तो छोटा बन गया कि नहीं? पिता बन गया तो पुत्र का ही ख्याल रखेगा, पड़ोसी के पुत्र का नहीं रखेगा। तो अपने आप में स्वार्थ होगा, संकुचित होगी, अल्पता, सब कुछ हो जाएगा उसके अंदर। उसे इसको छोड़ना है। कैसे छूटेगा कि पिता हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, पति रहते हुए, पत्नी रहते हुए। ये नहीं कि सभी को संन्यास ले घर छोड़ के, तभी छोड़ने से बनने का कोई नियम नहीं है। घर छोड़ने से लोग साथों भी बन सकते, ऐसे नियम नहीं है। और घर में रहने पर नहीं बन सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो यह जो दुखी पने का भान है, अल्पत्व का जो एहसास है, निश्चय है कि मैं तो अल्प ही हूं। अल्प इन सम टर्म्स, कोई पैसे में अल्प है, कोई बुद्धि में अल्प है, कोई विद्वता में। अपनी अपनी मर्जी से लोग मानते हैं कि मैं किस प्रकार से अल्प हूँ, छोटा हूँ। माने मुझे कुछ बनना है। मेरी कल्पना यह है कि मैं प्लस समथिंग, दोनों मिलकर हम कुछ बनेंगे।
अभी जो मैं हूँ वो ठीक नहीं हूँ। मैं प्लस पत्नी माने समथिंग, पति पत्नी प्लस पुत्र माने समथिंग, फिर पैसा आए, घर आए, सब कुछ, बहुत कुछ हो, शायद बन जाएंगे, शायद बन जाएंगे, शायद बन जाएंगे। ब्रह्म बनने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा बनना है ना, बहुत पैसे पर थोड़े ज्यादा, प्रतिष्ठा बहुत है, थोड़ी ज्यादा मिल जाए, पैसे थोड़े ज्यादा मिल जाए। मैं सोचता हूँ कि कुछ मिलेगा, मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, इतना बड़ा, बहुत पैसे से संतोष हो जाएगा, प्रतिष्ठा से संतोष, इतना भी मिलेगा तो और ज्यादा होगा ना। मुझे ब्रह्म बनना है, अनंत से, पैसा अनंत चाहिए, प्रतिष्ठा अनंत, सत्ता सब कुछ अनंत चाहिए मुझे, बस ब्रह्म चाहिए। अगर ब्रह्म यहाँ नहीं और वहां है तो अनंत हो सकता है कि नहीं? ब्रह्म आज नहीं है, कल होगा तो अनंत होगा कि नहीं? नहीं हो सकता। तो यहाँ नहीं और वहां है तो वहां परिच कट गया ना, तो अनंत नहीं हो सकता। आज नहीं है, कल होगा तो नित्य नहीं हो सकता। ब्रह्म को नित्य होने के लिए, अनंत होने के लिए, सर्व होने के लिए, सर्वव्यापक होने के लिए, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने के लिए, उससे मैं से भिन्न नहीं रह सकता मैं। अगर मैं भी ब्रह्म नहीं, आप भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, ये भी ब्रह्म नहीं, तो बेचारा ब्रह्म तो कितना कट जाएगा, अनंत कहाँ से रहेगा? ब्रह्म को ब्रह्म बनने के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है कि उसे मैं से अभिन्न बनना पड़ेगा, सभी मैं से अभिन्न बनना पड़ेगा, तभी ब्रह्म रह सकता है। मैं सोचता हूँ कि मैं अल्प हूँ। अब ये सब तो सिद्धांत की बातें हैं, पर मुझे लगता है कि मैं परिचिन उसका क्या करेंगे। शास्त्रों में कर्मयोग इसका उपाय बताया है कि मैं निष्काम भाव से सेवा करूं। मुश्किल है, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूं इसके पीछे मेरा कैलकुलेशन या मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या। आपको 5 काम बताते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो, उसमें से आपको जो मर्जी करो, तो किस काम को पसंद करेंगे? इस काम करो, यह काम करोगे 5 रुपए मिलेंगे, इसमें से 10 मिलेंगे, उसमें 15, इसके 50, इस काम को पसंद करेंगे, ज्यादा फल मिलेगा उसी को, है ना? फल बताने वाले इस काम अपने कर्मों पर। तो मनुष्य का यही स्वभाव है कि वह फल के लिए ही काम करता है। इसकी उम्मीद है कि फल मिलेगा तो जरा मैं बड़ा होगा, आई बी हैप्पियर, ज्यादा प्रसन्न रहूंगा। जब तक वह यहाँ से सुख मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, इस प्रकार की जिंदगी जीता है, तब तक वह ब्रह्म बन सकता है नहीं, क्योंकि उसका आनंद वहां बैठा है। आनंद माने ब्रह्म। जब तक मैं कहूँ कि यह आनंद है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, तो मतलब मेरे में आनंद, मुझमें नहीं है आनंद, मैं आनंद नहीं हूँ। इसे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ जो आनंद है उसे यहाँ स्थापित करना पड़ेगा, अर्थात आनंद यही, इसमें आनंद नहीं है। अब बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। तो मुझे ये करना है कि मेरा मन है अगर यह घड़ा मिल जाए ना तो आनंद आनंद हो जाएगा। यह भी सोचता है कि अगर मुझे मिल जाए तो आनंद होगा, बराबर? क्योंकि घड़ा इतना सुंदर है कि सबको लगता है कि घड़ा मिले तो अच्छा है। मेरे से नजदीक है तो मैं सोचूं पहले तो मेरे हाथ पकड़ उसके ऊपर मैं ले लूं, वो सोचता है कि मैं ले लूं। अगर मैं ले लूं और प्रसन्नता का अनुभव करूं तो इससे यह निश्चित होगा कि देखा मैंने कहा था ना कि वो चीज आएगी तब आनंद होगा। आई कंफर्म दैट कि आनंद वही है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। उसको प्राप्त करने पर ही आनंद मिलता है, माने आनंद मुझ में नहीं है और बाहर है। उसे मैं कंफर्म करता रहता हूँ कि मैंने कहा था ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही है, आनंद बाहर है। ठीक है, मुझे इसमें से अपने आप को बाहर निकालना है।
कैसे करेंगे? या मुझे भी चाहिए, इसे भी चाहिए, तो मैं कहूँ आप ले जाइए, मुझे भी चाहिए। और उसे छोड़ने से मैं रोऊं कि दुखी हूं? नहीं। अभी ये होता है कि अगर मुझे मिले तो आनंद होता है, कोई ले जाए तो मुझे दुख होता है। मैं सोचूं कि अगर हम तो साधु हैं तो देना अच्छा, वैसे देना तो नहीं है, पर लोग कैसे कहेंगे कि साधुओं को नहीं देते, तो लोगों को दिखाने के लिए भी हम दे देते हैं कि हम ले जाओ, हमें कोई आपत्ति, हम तो साधु है, हमें क्या फर्क पड़ता है घड़ा मिले कि ना मिले, क्या होता है? अंदर से तो होता है कि घड़ा मिले तो अच्छा, नहीं ले जाए तो अच्छा। ऐसे कि नहीं माता जी आप ही रखो, बहुत बढ़िया, पर वो ले गया। तो अंदर से तो होता है कि दुख ले गया वह घड़ा, बाहर से हम दंभ करते हैं कि आप ले जाइए। आज की स्थिति है, उसमें से मुझे यह करना है कि एक पहला ये है कि मैं देता ही नहीं हूं, मैं चरफ से ले लेता हूं, और मैं शुरू करता हूं कि कोई भी कुछ चाहे तो मैं दे दूं, आप ले लीजिए। दूसरा होता है कि देने के बाद दुख होता है, मैं निश्चय करूं मैं दुखी नहीं होगा, उसे चीज दे दूंगा, उससे जो आनंद है उसमें मैं आनंदित हूँ। कर्मयोग इसे कहते हैं कि मैं कर्म फल के लिए नहीं करूंगा, और फल को छोड़ने पर भी मैं दुखी नहीं रहूंगा, मुझे आनंद होगा। तो कितना खुश है, घड़ा मिला उसे, नहीं अब बच्चों को हम देते हैं चॉकलेट तो कितने खुश हो जाते हैं। तो बच्चों को लोग चॉकलेट क्यों देते हैं पता है? तो लोग बच्चों को चॉकलेट क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्या? हाँ, बच्चे को खुश करने के लिए नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए। मैं अपना चेहरा दर्पण में क्यों देखता हूँ? अपने आप को देखने के लिए। बच्चे को चॉकलेट क्यों देते हैं? कि मैं तो खुश नहीं रह सकता, पर उनके चेहरे पर की खुशी देखकर मैं खुश हो सकता हूँ, इसलिए देता हूँ ना। इसी चीज को हमें जीवन में सबके साथ करना है, बस कर्मयोग है। आप ले जाइए, मैं खुश रहूंगा। अभी मैं देता ही नहीं हूँ, अगर दे दूं तो मुझे दुख हो जाता है। पहला काम मैं देना शुरू करता हूँ, उदारता, दुखदान करो या किसी को बांटो, जो मर्जी। आई कैन पार्ट विद द थिंग्स, मैं दे सकता हूँ। दूसरा, देने के बाद मैं प्रसन्न रह सकता हूँ। अभ्यास से होता है, बोलने से या प्रवचन करने से नहीं होता है, पढ़ने से भी नहीं, किसी से कुछ नहीं होता। आई हैव टू डू इट, मुझे करना है। मुझे पैसे कितने लाखों रुपए पर 1000 रुपया दे, 1000 रुपया डू मीन 1000 रुपया હું તાર નોટે જો આપણે 1000 રૂપિયા ખબર નહીં પૈસા ની શું વસ્તુ જ ન ખબર છે, हम तो खरेखर खबर नहीं पड़ती। सो इतना हम संकुचित रहते हैं कि नेवर पार्ट विथ एनीथिंग। घणो 1 રૂપિયાનો હશે, મને ખબર નહીં 5 રૂપિયાનો હશે, પણ કઈ નહીં, એક લઈ ગયો તો શું, ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? मेरा है पर मैं क्यों दूं? पता नहीं, इसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं पति हूँ, पुत्र हूँ, पिता हूँ, सभी लोग मुझे संकुचित करते हैं, और इसी हिसाब से मैं दुखी क्यों होता हूँ? ये ढूंढिए कि दुखी कब होता हूँ, क्यों होता हूँ? देखिए कब दुखी होते हैं आप। जस्ट एग्जाम्पल देखा, नहीं यहाँ बात दुख की नहीं, बात ये कि जैसे सपोज मैं ऑफिस में और मैंने अपने ऑफिस में अपने कलीग के साथ जो भी किया, उसके बाद जब पता चलता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, तो उस समय अंदर से गुस्सा आ जाता है, और फिर बाद में लगता है कि गुस्सा क्यों आया, प्यार से भी समझा सकता था। तो बस उसकी वजह से पूछा। बेचारा साधक ने बहुत तकलीफ ગેરવર્તન પેલો કરે, દુઃખી આપણે થઈએ। હા, સમજાય ને શું કહે છે? ઓફિસમાં નોકરી કરે, આપણે ઓફિસમાં નોકરી કરતા હોઈએ, પેલો ગેરવર્તન પેલો કલીગ કરે છે, એ ગેરવર્તન કરે, ગુસ્સો ચડે, કારણ કે હું નથી કરતો ગેરવર્તન,
અને પછી નહીં ભગવાન મેં ગુસ્સો શું કામ કર્યો. વાત સાચી છે. ऐसे ही सार्थक को अपने आप को हाँ हिंदी समझ मतलब हाँ गैर वर्तन माने सो गलत व्यवहार किया उसने मिसबिहेवियर. तो आप यही कहते हैं ना कि कलीग ने मिसबिहेवियर किया. मिसबिहेवियर किया. जैसे मेरी अपनी ऑन कंपनी है और मैंने अपने यहाँ सारे एम्प्लॉयज को एज ए फैमिली पार्ट ऑफ ट्रीट किया है. फिर भी लगता है कि कुछ एम्प्लॉयज जिनको मैंने एज ए परिवार की तरह से ट्रीट किया और उन्होंने उसमें गलत काम किया. तो वो ठीक है, उनका अपना कर्म है, लेकिन उस समय जब देखा कि गलती है तो उस समय क्रोध आ गया. तो वो बाद में मुझे लगता है कि मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था. तो वो उस वजह से मैंने ये गलती की. मानो क्रोध वाजबी हो तो इट वॉज प्रॉपर. मैंने कोई गलत नहीं किया. क्रोध करना ऐसी स्थिति थी कि मैंने क्रोध कर दिया. फिर भी मुझे लगता है कि मैं तो सावधान हूँ, क्रोध नहीं करना चाहिए, प्यार से समझा सकता हूँ. भगवान ने कोशिश तो बहुत की, दुर्योधन को प्यार से समझा नहीं की. अधर्म और अधर्मी दोनों को अगर सेपरेट कर सकते हैं तो करो. अधर्मी को बचा लो, अधर्म को छोड़ा दो. When they're inseparable, what we can do is it's a deliberate action, not a reaction. किसी ने गलत काम किया, मुझे लगता है कि मुझे डांटना चाहिए क्योंकि मैं एक पोजीशन पर हूँ और संस्था को चलानी है. संस्था चलाने की उसका पगार मिलता है, उसके सामने इतना काम मुझे करना चाहिए, उसे इस प्रकार से करना चाहिए. ये मैं जानता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि ये काम ऐसे करना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है, ये सब कुछ करना है. फिर भी वह नहीं करता, गलत करता है और लोगों को भड़काता भी ऊपर से. तो मुझे क्या करना चाहिए कि कोई बात नहीं, आप तो भगवान साक्षात नारायण है, आप तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर, मुफ्त में पगार देंगे, ये करना चाहिए मुझे. मान में भले ही नारायण की बुद्धि रखूं, इट्स नॉट अ रिएक्शन. रिएक्शन माने सबके सामने अपमान करूंगा, उसे निकाल दूंगा, क्रोध करूंगा, जिसके कारण मुझे दुख होगा. तो मैं सोचता हूँ कि कैसे उसे सुधारना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ. एक्शन माने इट्स अ प्रीमेडिटेटेड एक्शन. रिएक्शन इज नॉट प्रीमेडिटेटेड. इट आल्सो कैन बी प्रीमेडिटेटेड कि एक बार माफ किया, दूसरी बार माफ किया, तीसरी बार माफ किया, हर बार देयर इज अ बिल्डअप इनसाइड, बात चले. फिर जब चौथी बार करता है तो इट्स अ रिएक्शन. पर नो, आई एक्ट नॉट रिएक्ट. मैं सोचूंगा कि कैसे उसे सुधारा जाए और उसको नुकसान न हो, संस्था के भी, कंपनी का भी नुकसान न हो, उसका भी नुकसान न हो, उसे खराब भी न लगे, किस प्रकार से बात की जाए. अब ये जरूरी नहीं कि हम जो कोशिश करेंगे सफल ही रहेगी. इट्स अ डेलिबरेट एक्शन, नॉट अ रिएक्शन. मैक्सिमम आई कैन डू इज दिस. तो फिर हमें गिल्ट फीलिंग का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मैं आई एम नॉट डूइंग एज अ पर्सन, as the owner of the company or the chairman or whatever of the company, I am doing it. It's an action, my duty that I am performing. Not that you are reacting with him as a foe or enemy of yours. Out of dvesha you are not doing. You are doing out of your duties, your own necessity, your own thinking. You think this is how I should treat him. So it's a premeditated action, not a reaction. फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं निकला, कि सब कुछ असर ही नहीं हो उसके ऊपर, बदल सकता हूँ, किसके बताइए ऐसे करूँगा. देयर इज नो गिल्ट. अपने बच्चों को भी, बच्चा गलत काम करके आता है तो फिर जैसे मैं कहती हूँ, मैं कई बार एक परिवार था हमारे अहमदाबाद में, पहले शहर में बहुत पोर स्ट्रीट्स, मैंने स्ट्रीट्स बैठते हैं, इवन नाउ दे आर, बट नाउ many people suggest societies outside Ahmedabad. तो बहुत पहले एक परिवार था, तो परिवार में जो पत्नी थी उसकी तो अवसान उसका हो गया था, पिता और 2 बेटे थे, दादा दादी वगैरह थे. और बच्चा था, दादा बोलते, दादा माने
Nana, hello, Dado, boss like, Don, let us say. There are some boys like Don. When he goes to school में जाता है तो कोई दूसरा इसका दफ्तर पकड़ता है, चल ले भाषण, like that. So ऐसा लड़का था, माँ उसकी मर गई थी, तो पढ़ने नहीं जाए, थिएटर में जाकर बैठा पिक्चर देखे। तो किसी ने उसके पिता को बताया, तो वो पिता देखने गया, उसने देखा कि वो पिक्चर थिएटर में बैठा है, पिक्चर देखता है, देखकर वापस आ गया। घर आया, उसने फिल्म देख ली पूरी, लड़का घर आया, उसको भोजन करवाया, फिर उसके साथ शुरू किया। वो वहां थिएटर में कर सकता था, सबके सामने मारते मारते ले आता, क्या करता है, मैं पैसे खर्च करता हूँ तो ये काम करता है। That could have been a reaction. This is an action. घर में नया खिलाया पिलाया, तो छोटा बच्चा है बेचारा, 15 वर्ष का विदुषु, तो उसने इस प्रकार, नहीं तो क्या होता है कि मारो फिर ऐसे ब्लीडिंग वगैरह हो जाए, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। नाउ एक्शन, एक्शन माने इस प्रकार से इसको मारे भी तो इस प्रकार से तो हानि नहीं होनी चाहिए, है ना। तो एक्शन और रिएक्शन आर डिफरेंट। सो एक्शन इज ए प्रीमेडिटेटेड एक्शन, कि क्या करो, कैसे सुधारो उसको। तो नहीं कि मैं सुधारूंगा नहीं, जो करे क्या करें हम तो कुछ नहीं, हम तो साथ है, कुछ नहीं कर सकते ना, करेंगे पर रिएक्शन नहीं करेंगे, एक्शन करेंगे। तो दुख होने का एक यह प्रसंग है कि जहाँ हमें दुख होता है, तो मोर देन दैट इसने अपमान किया और इसने हमारी चीज दे ली और हमारे हक का था नहीं दिया, बहुत सारी चीजें होती है दुखी होने की। पर सभी में प्रायः अपने छोटेपन का ख्याल ही उसका कारण बना रहता है। जितना ग्रो माने मैं विशाल हूँ, कोई बात नहीं। जैसे घर में एक दादा ग्रैंडफादर होता है ना, 3-4 पीढ़ियों के बच्चे हैं घर में, let us say 100 people are sick, children, 4 generation people see generally, तो बहुत सारे। अब इसने इसको मारा, इसका कुछ ले लिया, सब दादाजी को क्या होता है, किस ब्लेसिंग ले लिया, कोई दे देगा, फिर दे देगा, उसने मारा, कोई बात नहीं, चलो मैं उसको बताऊंगा। तो ही सो जनरस, उदारता से सबको माफ करता है, कुछ नहीं है, ठीक है वो है। तो अपने आप को मुझे इतना बड़ा बनाना है उदारता से। जैसे कि मैं भगवान हूँ, अगर मैं भगवान होता तो क्या करता है, इसमें क्षमा करता है सब कुछ। पर इसका उपाय कर्मयोग है, सेवा, निष्काम वगैरह शब्द बोलते हैं। सेवा के नाम से निष्काम सेवा में से नहीं होती। सेवा करने वाले फोटो तो खींचवाते हैं, वर्तमान पत्र अखबार में छपवा भी देते हैं, तो निष्काम सेवा नहीं होती। पर जितना हो सके आप समझते जाएं कि कोई कामना न रहे और सेवा करें, इससे मेरे हृदय विशाल होगा। विशाल होने का मतलब यह होगा कि जीव की वृत्ति कम हो, मैं छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता, कुछ देने पर मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। इस प्रकार से जो अल्पता का ख्याल है ना, उससे मुक्त होता जाऊंगा। आई ऑल्सो कैन शेयर, मैं दे सकता हूँ, प्रेम को प्यार कर सकता हूँ, किसी को पानी पिला सकता हूँ, नहीं कि मुझे पैसे देने हैं। वॉट एवर आई हैव, आई कैन टीच समबडी, गीता का श्लोक सिखा सकता हूँ किसी प्रकार से, पर मैं अपने आप को सार्वजनिक संपत्ति बना सकता हूँ। सार्वजनिक संपत्ति बन गई तो मेरा हृदय कितना विशाल होगा। कोई भी आकर ये मेरे को पानी पीने की परब है, कोई भी आकर प्याओ पर पानी पी सकता है, आओ पियो, मैं ऐसे हूँ सार्वजनिक। आपको कुछ चाहिए, मैं हूँ, आपको प्रेम चाहिए, मैं हूँ, आपको पूछना है, मैं हूँ, आपको भोजन चाहिए, लो ये। तो जीव की वृत्ति जितनी कम होती जाएगी अल्पता की, धीरे धीरे विशाल होती जाएगी। एक दिन इतनी विशाल हो जाए कि इसमें किसी प्रकार की मर्यादा ही नहीं है, तब ब्रह्म का आकार बनेगा। ब्रह्म ब्रह्म बोलने से नहीं बनेगा, ब्रह्म अनंत से बाहर बोलने से भी नहीं बनेगा। हमें जीवत्व से अपने आप को छुटकारा दिलाना होगा। कर्मयोग उसका साधन है और कोई साधन नहीं।
करते 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 होगा कि कोई बात नहीं, कोई ठीक है। जितने हम विशाल होते जाएंगे, ब्रॉड माइंडेड, उतना उतना जीवत्व कम होता जाएगा। क्रमशः होगा कि जीवत्व का नाम ही नहीं है। फिर तत्वमसि काम करेगा ना, तत्वमसि काम नहीं करेगा। तत्वमसि से हम ब्रह्माकार वृत्ति, सभी को तत्वमसि तो बोल ही दिया ना, क्यों नहीं बनती? जीवत्व छूटता नहीं है। अगर घट नहीं करे तो पट वृत्ति बनेगी कहाँ से? घट वृत्ति को जाना है, फिर पुष्प वृत्ति बनेगी। सिंपल। जीव वृत्ति को जाना, हमें उसके लिए काम करना होगा। प्रवचन सुनने बोलने से कुछ नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि प्रवचन तो सुनना ही है, पर सुनने के अनुसार कुछ करना भी है। एक ज्ञानादेव तो कैवल्य में इसने बड़ा गड़बड़ कर दिया है। सुना है? ज्ञानादेव तो कैवल्य, ज्ञान से ही कैवल्य हो जाता है। होते ज्ञान न मुक्ति ही, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। मान के ज्ञान से मुक्ति होती है। अब पढ़ लिया तो ज्ञान तो हो ही गया, तो कैवल्य हो गया, है ना? शास्त्र के ही वाक्य, उपनिषदों के वाक्य है। ज्ञानादेव तो कैवल्य, ज्ञान से कैवल्य है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने सुन लिया, पढ़ लिया तो ज्ञान हो गया, पर नहीं होता। पढ़ने से, सुनने से, सोचने से किसी चीज से नहीं होता। ज्ञान का नाम माने वृत्ति बने। वृत्ति का अर्थ है कि अगली वृत्ति उसको स्थानांतरित करना है, अब रिप्लेस दैट वृत्ति। तो अगली वृत्ति जाती नहीं। कौन? मैं जीवित रहता हूँ, ऊपर से ब्रह्म बन जाता हूँ। ऐसे होता है कि मैं राम नाम है मेरा, तो मैं राम ब्रह्म हूँ। नदी को समुद्र बनने के लिए नदी बना छोड़ना पड़ता है ना, तब समुद्र बनती है। नदी नदी रहे और समुद्र बने नहीं होता। मैं जीव रहकर ब्रह्म नहीं बनता, जीव बने को छोड़ना आवश्यक। क्योंकि जीव को, जैसे सर्प रहकर रज्जु बनेगी नहीं, सर्प को रज्जु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको विकास से देखना होगा। वो तो मेरे लिए रज्जु को हो गया कि मैं सर्प हूं। उस सर्प को रज्जु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? દોરડીને વેમ થયો સાપ છો, એ સાપ है દોરડી बनवा શું કરવું પડશે? नाम रूप से बाहर मैं सर्प हूं, इसे छोड़ना पड़ेगा। अब सब 99% चला गया, 1% रहा, तो रज्जु बनेगा कि नहीं? 1% सर्प है अभी, तो कहां से बनेगा? नहीं, सर्प ही रहेगा। सर्प ही रहेगा। 1% भी सर्प हुआ तो सर्प ही रहेगा, रज्जु नहीं बनेगा। सर्प को अपने आप को पूरे पूरा निश्चित कर देना है। इतना ही नहीं, सर्प का अभाव रहेगा तो रज्जु मिलेगी। अभी सर्प था, बस अभी सर्प था, तीनों काल में सर्प नहीं है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा। तीनों काल में सर्प का आत्यंतिक अभाव होगा, तभी रज्जु का ज्ञान होगा। रज्जु सर्प का अधिष्ठान भी नहीं है। तो मैं जीव रहकर ब्रह्म बनूंगा, क्योंकि सर्प को अपने आप सिद्ध एक ही चीज है, अपने आप को घट मानता है, उसे अपने आप को मिट्टी जानना है, तो मैं घट हूं, इस ख्याल को छोड़ना पड़ेगा ना। इसको ख्याल है कि मैं सर्प हूं, उसे रज्जु बनने के लिए मैं, क्योंकि मैं दोनों का कॉमन है, मैं और हूं कॉमन है, अनकॉमन सर्प और रज्जु है। जो अनकॉमन सर्प है उसे निकालना पड़ेगा। पूरा सर्प है, उसी मैं को, अपने आप को जो सर्प मानता था, उसे अपने आप को रज्जु जानना है। उसी मैं को, मैं एक ही है। अब यह मैं है, अपने आप को जीव मानता रहेगा, उसी मैं को ब्रह्म कैसे बनाएंगे? इस मैं में जो जीव लगा हुआ है ना, चिपका हुआ, मैं को रखना है और जीव को निकाल देना है। जीव हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय ब्रह्म। अब श्रवण वगैरह में क्या होता है, जीव तो पक्का बैठा रहता है। देवदत्त प्रवचन सुनने बैठता है, मैं देवदत्त मुझे ब्रह्म बना दो,
अब देवदत्त रहते हुए ब्रह्म कैसे बनेगा, है ना? सर्प रहते हुए रज्जु, सर्प का श्रवण करता है, वेदांत का श्रवण करता है, सर्प श्रवण करता है, सर्प जो आए उसको डंक देता है, यहाँ से दूध पीता है, सबकी पूजा पत्ते लेता है और वेदांत में श्रवण करता है, मैं सर्प है, रज्जु हूँ, रज्जु हूँ, रज्जु हूँ। सर्प बनने के जो फायदे हैं, लाभ है ना सर्प बनने का। सर्प को दूध पिलाएंगे कोई, रज्जु को पिलाएंगे, सर्प की पूजा पत्ती करेंगे, गौरडी की करेंगे कोई नहीं, तो सर्प बनना अच्छा है कि रज्जु बनना अच्छा है? सर्प बनना अच्छा है ना? प्रवचन सुनता है कि मैं रज्जु हूँ, मुझे रज्जु बनने, मुझे रज्जु की वृत्ति बनानी है, और इस बीच में कोई आ गया कि महाराज आपकी पूजा करने है, तो सर्प ऐसे घुट जाता है, चलो पूजा कर लो, फिर बाद में मैं रज्जु हूँ, प्रवचन सुनता है, तो बनेगा रज्जु। जीव बनने के लाभ बहुत है। जीव बनकर प्यार करेगा, कोई घूमने ले जाएगा, कोई लड्डू खिलाएगा, ब्रह्मा को पान खिलाएगा, कुछ नहीं करेगा। जीव बनने के लाभ नहीं छोड़ने हैं हमें, ब्रह्म बनना है, ठीक है? It is not to disappoint somebody, पर कटिबद्ध तो भी हम to work। हाँ, हमें कुछ करना है। ये જ્ઞાનાદિઓથી કૈવલ્ય બહુ નાશ કર્યો છે। જ્ઞાનથી કૈવલ્ય, જ્ઞાન કશું જ્ઞાનથી નતો થતો। આ જિંદગી 50 વર્ષથી 50 જન્મથી સાંભળતા હશે, આમ થાય છે અહીંયા આગળ। એટલા જન્મોથી કાને પડતો જ હશે ને કે બ્રહ્મજો બ્રહ્મજો બ્રહ્મજો, તો આયા ને એને તો ક્યાંથી આયા હોય? પણ સાંભળ્યા જ કરે, વટથી બેઠા બેઠા કેમ એવું થાય છે? So જ્ઞાનથી કૈવલ્ય, જ્ઞાન જન્મે તો કૈવલ્ય થાય, ઓકે, જ્ઞાન જન્મે તો જ્ઞાનથી કૈવલ્ય થાય, જ્ઞાન જન્મતું નથી। So જ્ઞાન ઇઝ નોટ ધેટ વૃત્તિ, શ્રવણ શ્રાવણી વૃત્તિનું નામ જ્ઞાન નથી। અપરોક્ષ જીવને ખસેડે તો જ બ્રહ્મનું જ્ઞાન થયું કહેવાય। अगर जीव बैठा बैठा बोले कि जीव बोले कि मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म बन गया, तो सर्प तो वैसे ही रहा, बोलता है मैं रज्जु बन गया, थोड़ी बन जाएगा। सर्प रहते सर्प की पूजा उच्च तो लेता ही है वो, और कोई नहीं करे तो उसको नंक भी देता है, उसको विष पिलाता है, वो मर जाता है। बोले कि मैं रज्जु हूँ, ज्ञानादेव तो कैवल्य, ज्ञान हो गया मैं रज्जु हूँ। सर्प रहते रहते उसे ज्ञान हो गया कि मैं रज्जु हूँ। जीव को ज्ञान नहीं होता मैं ब्रह्मा हूँ। जीवा हैज टू गो, कोशिश उसकी करनी है। अरे कि पूछो तूने बड़ी बात है। शुक्र सवाल पूछो तो मैंने को सांजे पूछो, चलो तो अपने पेली माताजी ने आरती આજે તો થશે ને, જોઈ ભગવતી જોડે આ લોકો ચોપડી આપતો આપી દો। હા બંધ કરી દો।